ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸਿਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains. ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, and I hope you are preparing very well for that particular exam, right? A lot of lectures have already been covered under this particular lecture series. If you haven't watched those, then after attending this lecture, I will seriously suggest you do watch all those lectures as per your need and requirement, right? We are covering rather the entire ethics portion, right? Two topics will be covered till today, and one topic will be left, will be covered, which will be covered accordingly, right? So now let's start with our lecture of the day, and the topic for today is challenges of corruption. It is the second last rather topic as per our lecture series of the probity in governance topic, right? We have started this topic. So yes, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਓਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਫ। ਓਕੇ, yes, before the lecture, just a small information for you. ਚਾਣਕਿਆ IAS Academy ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ which contains what booklets. You will be getting booklets which will be covering the entire main syllabus, right? Complete main syllabus will be covered under these booklets. You don't need to go anywhere. As well as we are giving according with this mains test series, these booklets plus mains test series at just rupees 8,000 rupees. 8,000 8000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਬੁਕਲੇਟਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਨੋ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ good option, wonderful option rather I would say, if you haven't subscribed to any test series as of now, ठीक। चलो, so let's start. See, all these topics are there. We have covered this right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality service delivery. This topic will be left. छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। I will इसको भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। छोटा बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो इसके लिए 15-20 मिनट्स के अराउंड जितनी की भी होगी, I will provide it to you, don't worry. Then challenges of corruption, this is the topic of the day, ठीक है। आज का ये टॉपिक है, राइट। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। यू नीड टू राइट दिस डाउन, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस। सो व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स से है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी? डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। 10 मार्कर 2015 का क्वेश्चन है, राइट। 150 वर्ड्स में आपको लिखना था। मैं अपने टेलीग्राम चैनल आपसे शेयर कर रहा हूँ, सी हियर, राइट दिस डाउन, सेंड इट टू माय टेलीग्राम चैनल, आई विल रिव्यू इट फॉर यू, ठीक है। वहां पर रिव्यू करके आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर फीडबैक कि क्या आपने मिस्टेक्स करी, क्या नहीं करी, कैसे इंप्रूव कर सकते थे, ऑल दोस थिंग्स, राइट। कोई भी क्वेरी है, रादर इनफैक्ट कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप उससे वहां पर पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर अपने एग्जाम के लिए भी इन जनरल, ठीक है। चलो, सो आज का अपना टॉपिक है क्या? चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सी challenges of corruption से पहले we should understand corruption, yes or no? We should know what does this mean, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, सी करप्शन के लिए सीधा सीधा आप क्या करें, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, करप्शन इज द यूज ऑफ, ठीक है, करप्शन इज द यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्राइवेट यूज, फॉर प्राइवेट गेन, ठीक है, फॉर प्राइवेट गेन।
ठीक है, बढ़िया डेफिनेशन है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, करप्शन इज द यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है, अपने हित के लिए, अपने प्राइवेट गेन के लिए, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी का यूज करना क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है इन जनरल। यस, सी करप्शन की बहुत सारी फॉर्म्स भी होती हैं, अभी देखेंगे, बट इन जनरल अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्जाम के अंदर, आप सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एग्जाम डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आस्क मी, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, एज वी ऑल नो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, it releases an index by the name corruption perception index, right? corruption perception index। ठीक है, और इंडिया की उसमें लेटेस्ट जो इनका डाटा रिलीज करा था इस इंडेक्स का, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया वाज 96 आउट ऑफ 180, विच इज अ वेरी पुअर रैंकिंग। तो डेफिनेटली आप इंट्रोडक्शन के अंदर अपने आंसर्स में इसका यूज कर सकते हैं कि लाइक ट्रांसपेरेंसी, आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर है, 96 आउट ऑफ 180। ठीक है, ऐसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यस, करप्शन की कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, देयर इज अ पुअर सिचुएशन ऑफ करप्शन एज इंडिया इज कंसर्न। ठीक है, ओके, सो करप्शन कैन बी इन मेनी फॉर्म्स, राइट? So the topic is now forms of corruption. Let us look at the forms of corruption. ठीक है, आई होप करप्शन समझ आ रहा होगा, इन जनरल सबको पता होता है। नाउ हमारा जो लेक्चर का जो फोकस है, हमें अपने आंसर्स पे कैसे लिखना है, क्या चीज लिखनी है, हमारा सिर्फ उस पे फोकस है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली, दैट एस्पेक्ट ओनली। करप्शन पे अगर आप बात करें तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है सच, बट हमें सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है कि क्या हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उतना ही करेंगे। हमें मार्क्स स्कोर करने से मतलब है, दैट इज आवर सोल ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। ठीक है, सो लेट अस लुक एट दैट ओनली। यस, सो यस, फॉर्म्स ऑफ करप्शन। सो द फॉर्म्स ऑफ करप्शन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी मैनी फॉर्म। ठीक है, लाइक ब्राइबरी। ठीक है, ब्राइबरी इज अ वन फॉर्म ऑफ करप्शन। यस और नो? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म इज आल्सो फॉर्म ऑफ करप्शन। बेसिकली करप्शन सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे कि आप कोई भी ऐसा काम जहां पर आप सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए किसी का मिसयूज कर रहे हैं, किसी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और अपने पर्सनल गेन के लिए किसी और का हक छीन किसी और को दे रहे हो आप, तो वो भी करप्शन है एक तरीके से, राइट? बट ये जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं फॉर्म्स ऑफ करप्शन, इससे आप डेफिनेटली रिलेट कर लेंगे कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ करप्शन। ठीक है, सो लाइक ब्राइबरी इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, कि कोई बंदा है, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो एफआईआर लिखवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एफआईआर लिखने तक के लिए भी अगर सामने वाला जो पुलिस वाला से पैसे मांगे, तो ये भी ब्राइबरी है, ये भी आपका क्या है, करप्शन के फॉर्म है एक। यस, ओके, देन व्हाट? देन इज एक्सटॉर्शन। Extortion is also a form of what? Corruption, right? Extortion is also a form of corruption. Then rent seeking, illegally rent seeking, unnecessary rent seeking, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर आप मांगने लग जाते हो किसी से रेंट। यस, देन ठीक है, उसके बाद और एम्बेजलमेंट फ्रॉड। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट जो है आपका, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ करप्शन है। फ्रॉड करना, ये भी क्या है, आपका फॉर्म ऑफ करप्शन है। ठीक है, देन योर क्लाइंटलिज्म एंड पैट्रनेज। ठीक है, किसी को फेवर करना अननेसेसरली, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बंदे की तरफ इंक्लिनेशन करना, अननेसेसरली फेवर देना, ठीक है, एक ही बंदे को करे रखना, तो वो भी क्या है, आपका फॉर्म ऑफ करप्शन है। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन दैट यू कैन टेल, राइट? ब्राइबरी, नेपोटिज्म, एक्सटॉर्शन, रेंट सीकिंग, देन एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, ठीक है, क्लाइंटलिज्म एंड पैट्रनेज। इट ऑल दीज आर व्हाट? फॉर्म्स ऑफ, different forms of corruption that you can quote in your answers, right? Then let us see the next dimension, which is the reason for high corruption. What is the reason for high corruption?
आपको कोई भी डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है जो लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, आपको उस पर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर, डोंट वरी। ठीक है, कई बार नहीं भी आपको समझ आता कोई वर्ड, तो आप वहाँ पे करप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, नाउ लेट अस सी द रीजन फॉर हाई करप्शन। फर्स्ट इज मॉरल। ठीक है, तो मॉरल इश्यूज, यस, इन जनरल कि लाइक मॉरल इश्यूज क्या, कि आपके मॉरल्स ही खराब है किसी बंदे के लिए, लाइक ग्रीड। ठीक है, ग्रीड इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ करप्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ करप्शन एज फार एज द मॉरल इश्यूज आर कंसर्न। यस, देन देयर इज अ लैक ऑफ वैल्यूज, lack of values like honesty and integrity, lack of values like honesty and integrity. If there is a lack of these values, that will lead to what? Corruption. Yes or no? Then what? ये तो moral issues हो गए. Then your administrative and legal issues, administrative and legal issues, right? Like administrative और legal issues, इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है आपका। ठीक है, moral issues देख लिए हमने, then administrative legal issues में first complex laws and procedures, complex laws and procedures। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई लॉज अगर इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इतना टिपिकल बना दिया कि सिंपल जनरल पब्लिक को समझ ही ना आए वो, ठीक है, तो वहां पर उसका मिसयूज हो सकता है रादर। यस और नो? फॉर एग्जांपल आपके जो टैक्सेशन लॉज होते थे, जो पहले के टैक्सेशन लॉज थे, जीएसटी, स्पेशली जीएसटी से पहले के, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे। तो वहां पर जो इंस्पेक्टर होते थे, टैक्स इंस्पेक्टर्स वगैरह होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, बहुत मिसयूज करते थे इसका। यस, सो दिस इज इट। देन like colonial legacy with limited checks, with limited checks and high discretion, and high discretion। लाइक कॉलोनियल एरा के टाइम की जो आपकी जो लेगेसी है वो भी कंटिन्यू हो रही है कहीं ना कहीं। क्या उस टाइम पे क्या होता था, ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा हाई पावर दे दी जाती थी और उनमें कुछ खास चेक भी नहीं थी। तो जो किसी बंदे पे इतनी ज्यादा पावर आ जाए और कोई रोक टोक ना हो, तो उसका मिसयूज होना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। उस पावर का मिसयूज होना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, एंड इट लीड्स टू व्हाट? करप्शन। यस और नो? सो दिस इज इट, दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन। ठीक है, देन lack of transparency and accountability, yes, definitely lack of transparency and accountability, yes, this is also one other reason। clear है? yes or no? then centralization of power, centralization of power, in fact there is a need, corruption को हटाने के लिए सबसे important, one of the utmost requirement is the decentralization of power। राइट, होता क्या है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो इतनी नॉर्मली इजीली अवेलेबल नहीं होते, कहाँ एक्सेसिबल होते हैं। बट जो आपके लोकल पंचायत हैं, ठीक है, जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ के जो भी हैं, काउंसलर्स हैं बेसिकली, वो सब सबसे ज्यादा रीचेबल होते हैं, हर टाइम अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। यस, तो उनको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यस और नो? देन लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लैक ऑफ independent lack of independent investigation agencies। ठीक है, फॉर एग्जांपल है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कंट्रोल ही है। लाइक फॉर एग्जांपल सीबीआई, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? अ केज्ड पैरट। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है क्या? अ केज्ड पैरट। नॉर्मली सीबीआई का यूज किस लिए किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, इसका यूज सिर्फ जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो अपोजिशन पार्टी को अरेस्ट करने के लिए ही कर रही होती है मोस्टली।
ठीक है, जो पावर में आ जाता है वो कंट्रोल करता है, अकॉर्डिंगली सीबीआई उसके हिसाब से बोलने लग जाती है और वही काम करती है। यस, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। यस और नो? राइट, ओके। देन political causes. Let's see what are the political causes. ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर ऑन सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल प्रेशर ऑन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, एक अननेसेसरी प्रेशर, हमेशा अननेसेसरी नहीं, बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द टाइम उन पे प्रेशर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमेशा रहता ही है। तो इससे क्या करते हैं वो? दे हैड टू इंडल्ज इन करप्शन, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, वो करप्शन में एंगेज होते हैं, उसके चक्कर में सिविल सर्वेंट्स को भी एंगेज होना पड़ता है। ठीक है, या फिर अदर वे राउंड भी है कि इनका पर्सनल बेनिफिट भी होने लग जाता है, उनको भी दिखने लग जाता है। तो ऑल इन ऑल द पॉलिटिकल प्रेशर जो सिविल सर्वेंट्स पे होता है, इट विल लीड टू करप्शन। यस, देन हमारी जो सोसाइटी इटसेल्फ, इंडियन सोसाइटी हमारे यहाँ पे इनफैक्ट करप्शन को एज अ बोन नहीं देखा जा रहा होता। अगर कोई बंदा है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी उसको बॉयकॉट कर देगी, उसे बात करना छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, दैट पर्सन शुड बी बॉयकॉटेड। अगर ऐसा हमारा यहाँ एनवायरमेंट बन के हमारा कल्चर इस हिसाब से डेवलप हो जाए, तो करप्शन अपने आप पीछे हटती चली जाएगी। यस, तो इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इट इज टॉलरेंट टुवर्ड्स करप्शन, टॉलरेंट टुवर्ड्स करप्शन। राइट, यस और नो? ठीक है, इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी को सॉफ्ट स्टेट का टाइटल दिया हुआ है, इंडियन सोसाइटी को सॉफ्ट स्टेट बोला गया है। यस, किसके थ्रू? ठीक है, गुन्नार, ठीक है, गुन्नार मिट्रल की बुक है, इनकी बुक का क्या नेम है? एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा, जहां पर इंडिया को क्या बोला गया? सॉफ्ट स्टेट। वाई? बिकॉज यहाँ पर लॉज बनते तो हैं, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे, ठीक है, वो बनते तो जाते हैं, दे आर प्रोसेस्ड, ठीक है, बट उनको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है, इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसके लिए काफी रिक्वायरमेंट होती है। एनवायरमेंट वैसा होना चाहिए आपका, जो लोग सिटीजन है, दे शुड बी वेरी वेल अवेयर, दे शुड बी वेरी एक्टिव रादर, जबकि वो तो खुद इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो पैसिव होते हैं, फर्क नहीं पड़ा, सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कराना लॉज को बहुत टिपिकल हो जाता है। राइट, एंड देयर आर सर्टेन अदर कॉजेज एज वेल, देयर आर सर्टेन अदर कॉजेज एज वेल फॉर द स्प्रेड ऑफ करप्शन, लाइक वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 2014 बहुत वीक है, कोई खास प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करी जा रही होती, तो इसलिए से लोगों को हिम्मत ही नहीं आती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग मार्टियर हो गए इसके चक्कर में। तो ठीक है, बट उनको प्रोटेक्शन वाली बात आती है तो अभी बहुत वीक है, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए इस एक्ट को। राइट, राइट, सो दिस इज इट देन। और सी एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी, एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स वगैरह को। ठीक है, उनको उनके पास क्या है? देयर इज एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी, कि लाइक हमारे यहाँ पर कोई आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट्स है, लाइक उनको जोन सी अथॉरिटी हायर कर रही है, जोन सी अथॉरिटी उनको अपॉइंट कर रही है, ठीक है, उनका रिमूवल भी जो होगा या तो वही सेम अथॉरिटी या फिर उससे हायर अथॉरिटी ही कर सकती है, उससे नीचे वाली अथॉरिटी उनका रिमूवल नहीं कर सकती। यस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, भाई हमें कोई हटा ही नहीं सकता इतनी इजीली, तो करो जो करना है। ठीक है, वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। यस, देन नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट डायमेंशन व्हिच इज द टाइप्स ऑफ करप्शन, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ करप्शन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट इज
coercive, ठीक है, then and second is collusive. ठीक है, जब कोर्सिव की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, द ब्राइब विक्टिम या फिर ब्राइब गिवर, सॉरी, ब्राइब गिवर इज द विक्टिम ऑफ करप्शन, ब्राइब गिवर इज द विक्टिम ऑफ करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, वो जो FIR लिखवाने बंदा आ रहा था, उससे ब्राइब मांगी गई, अल्टीमेटली बेचारे को ब्राइब प्रोवाइड देनी पड़ी, तो ही इज द विक्टिम ऑफ करप्शन, राइट, ही इज द ब्राइब गिवर बट ही इज द विक्टिम ऑफ करप्शन। वेरस कोल्यूसिव में क्या है, दोनों कोलाइड करके दोनों का फायदा होता है, जो ब्राइब दे रहा होता है और जो ब्राइब रिसीव कर रहा होता है, दोनों के अपने पर्सनल गेन चल रहे होते हैं और करप्शन फैला रहे होते हैं, राइट। यहाँ पर आपके जो ब्राइब गिवर एज वेल एज बोथ ट्रेकर, बोथ ब्राइब गिवर एंड ब्राइब रिसीवर गेन बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो टेंडर्स निकलते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी बिल्ड होनी है, तो वहां पे ऑडिटोरियम बनाना है, तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, टेंडर निकालेगी। लेकिन यहाँ पर अगर जो टेंडर की जो अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी जो टेंडर रिलीज कर रही है, और जो सामने वाली कंपनी जो अप्लाई कर रही है, लेट्स से जो प्राइवेट कंपनी है, वो ब्राइब दे दे किसी टेंडर वाली अथॉरिटी में से किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और वो बंदा उसी को टेंडर प्रोवाइड करे, फिर उसी कंपनी को, उसके बदले में कि ब्राइब, उस बंदे को ब्राइब मिल गई, उसको पैसा मिला, उसको फायदा, और कंपनी को टेंडर मिल गया, कंपनी का अपना फायदा, राइट। तो इस दिस सेंस में वो क्या है, आपकी कॉल्यूसिव करप्शन का एग्जांपल है। और कोर्सिव में क्या होगा कि सिर्फ आपका जो ब्राइब गिवर बेचारा वो विक्टिम हो जाएगा करप्शन का। यस, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट डायमेंशन। सी इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, इस टॉपिक को कवर करते चला जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, देन इज हाउ विल यू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, सॉरी करप्शन, कॉम्बैटिंग करप्शन, करप्शन से कैसे लड़ना है। ठीक है, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट इज मॉरल इंटरवेंशन, मॉरल इंटरवेंशन। ठीक है, मॉरल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर क्या है देखो, सिविल सर्वेंट्स के लिए हमने टॉपिक किया था कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब सिविल सर्विसेज की बात आती है, सिविल सर्वेंट्स की बात आती है, तो देयर इज ओनली कोड ऑफ कंडक्ट हियर, यहाँ पर हमेशा सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट है, बट कोड ऑफ एथिक्स क्या है, मिसिंग है, ये क्या है, मिसिंग है। तो दिस इज रिक्वायर्ड कि सिविल सर्वेंट्स के लिए भी क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कोड ऑफ एथिक्स, ये प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी ये प्रोवाइडेड होना चाहिए, लाइक दे नीड टू फॉलो दिस। और इनफैक्ट सेकंड एआरसी ने तो रिकमेंड भी किया हुआ है, ये सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है क्या, कि एक सिविल सर्वेंट्स कोड बनाओ, देयर शुड बी अ कोड सिविल सर्वेंट्स कोड which should include सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट प्लस कोड ऑफ एथिक्स, बोथ, ये दोनों कंबाइन होने चाहिए, उसका नाम रखो आप सिविल सर्वेंट्स कोड। यस और नो, राइट, समझ आई ये बात। ओके, सो ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट, द लॉज एंड रेगुलेशन शुड बी सिंप्लीफाइड, सो देयर शुड बी simplification of laws and regulations। ठीक है, so this should be done। then और क्या कर सकते हैं, सी मिनिमाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स डिस्क्रेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स डिस्क्रेशन। ठीक है, उनकी मन मर्जी नहीं चलने देनी चाहिए, राइट। देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज होने चाहिए डिफाइंड, देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स।
ये शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, yes or no, right? And e-governance should be promoted, e-governance should be promoted. For example, आपके जो टेंडर्स की बात करें तो देयर शुड बी ई टेंडरिंग, इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, डिजिटली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जेम पोर्टल, एंड आई होप आपको जेम पोर्टल के बारे में पता होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, राइट? आई एम एक्सपेक्टिंग कितना तो आपको पता होगा, ठीक है? यस, सो these can be done, right, when it comes to administrative interventions. Now legal measures, what can be the legal measures, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम? सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है कुछ एक्ट्स को, लाइक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, तो स्ट्रेंथन द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, देयर शुड बी मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द विसल ब्लोअर्स, लाइक जो भी ऐसे स्कैम्स को बाहर लेके आता है, ही शुड बी अश्योर्ड ऑफ कि भैया आप सेफ रहेंगे, आपका नेम एनोनिमस रहेगा, नेम बार लीक नहीं होगा, यस और नो, ठीक है? और आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन करने की नीड है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले हम बात कर चुके हैं एक सेपरेट लेक्चर के अंदर, स्ट्रेंथनिंग आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, यस। कैसे स्ट्रेंथन करना है वो हम ऑलरेडी ये वाला एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, डू वॉच दैट लेक्चर इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, ठीक है? देन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, यस और नो, राइट? ओके, सो दीज आर द फ्यू लीगल मेजर्स। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, ये भी बेसिकली 1988 की है, 1988, इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, यस। देन और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको स्ट्रेंथन करने की डेफिनेटली नीड है, अभी और भी काम करने की इसके ऊपर जरूरत है, राइट? सो दीज आर द लीगल मेजर्स। देन ऑल और कौन से रिफॉर्म्स हैं, देन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सी यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन प्रमोशन एंड, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाने की नीड है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, एक केस था अपना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इन अ पर्टिकुलर केस कॉल्ड एज टी सुब्रमण्यम केस, ठीक है, टी सुब्रमण्यम, कौन है टी सुब्रमण्यम, हमारे एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, टी सुब्रमण्यम केस ऑफ 2013, ठीक है, इन्होंने इधर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था देयर शुड बी अ बोर्ड कॉल्ड एज सेंट्रल सर्विसेज बोर्ड, सॉरी सिविल सर्विसेज बोर्ड, देयर शुड बी अ बोर्ड कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड विच शुड हैंडल, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है ये हैंडल करेगा क्या, ठीक है, आपके ट्रांसफर्स प्रमोशन एंड दैट टू बोथ एट सेंट्रल एट स्टेट लेवल, बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, दोनों जगह पे हैंडल करेगा, ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हैंडल ना करें, ठीक है, ये बोर्ड होना चाहिए अलग से, ये देखें, यस। इसके साथ साथ और क्या सजेशंस थे, ठीक है, कि देयर शुड बी फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर, फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर, लाइक कहीं अगर मान लो ट्रांसफर हो रहा है किसी इंस्पेक्टर, लेट से एसपी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर हो रहा है, तो कम से कम 2 साल तो वहां पर वो रहे, ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद फिर से ट्रांसफर कर दिया गया,
राइट। तो इससे फिर डेफिनेटली इससे काम नहीं होगा, करप्शन ही होगी इससे, राइट। तो इस टाइप से अगर टेन्योर फिक्स होगा तो दे अपने काम करने में वो सशक्त रहेंगे, बेसिकली दे विल बी अश्योर्ड ऑफ, लाइक दे उनके पास एक सेफ टेन्योर है। यस, सो दीज आर द थिंग्स। देन और क्या कर सकते हैं हम कि यू कैन स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस, द इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं हम? ठीक है, सीबीसी, सीबीआई, ईडी, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लाइक अभी हमने देखा केजरीवाल जी का, देख ही रहे हो आप, यस और नो, कि कैसे ईडी का कैसे मिसयूज होता है, राइट। ईडी ने का कैसे मिसयूज करती है गवर्नमेंट। ठीक है, खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं, टू द पॉइंट ही रहना अपने को। यस, तो ओके, सो दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रेंथन। ठीक है, जब तक इनको हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे इनका मिसयूज होता रहेगा, रादर जिस पर्पज के लिए इनको बनाया था वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। जिसके हम लाइव एग्जांपल्स हम अपनी देख ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में देख ही रहे हैं, वो सारे इनके एग्जांपल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट ओवर हियर, राइट। ओके, then is a social intervention, there is a need of social intervention too। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि the society should be more sensitive toward corruption, the society should be more sensitive towards corruption, इसके अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए, यस और नो। सो दिस इज इट। लाइक यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, किसका, कि देयर इज एन कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। इसके अंदर नहीं एग्जांपल देंगे, बट इन जनरल आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका। ठीक है, सोशल इंटरवेंशन की बात नहीं करें, बट इन जनरल एग्जांपल है क्या कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इसके अंदर क्या है, इट इज लीगली बाइंडिंग, बाय द वे, ये जिसने साइन कर दिया लीगली बाइंडिंग है, राइट, लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन मल्टीलेटरल ट्रीटी है ये, इंडिया इसका मेंबर है, लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन, ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रीटी, यस और नो, राइट। ठीक है, ओके। सो नाउ एट देन यू कैन आल्सो गिव सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ पर्सनालिटीज के एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक हु हैव बीन मार्टियर्ड फॉर फाइटिंग करप्शन। ठीक है, लाइक आप सत्येंद्र दुबे, बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको हर जगह मिल जाएंगे ये कौन थे, आईईएस ऑफिसर थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे ये। ठीक है, ही वाज मार्टियर्ड बिकॉज इन्होंने एक करप्शन स्कैम निकाला था। ठीक है, एनएचएआई के अंदर जो करप्शन हो रही थी, ही ने इन्होंने ओपनली उसको ओपन किया था, लाइक, ठीक है, अंदर ही लीक दैट, ही रिवील्ड दैट, इन्हें एक्सपोज किया था बेसिकली, सो ही वाज मार्टियर्ड फॉर दिस, राइट। और एक आईओसीएल के सेल्स ऑफिसर थे एक, मंजुनाथ, ही वाज अनफॉर्चुनेटली आल्सो मार्टियर्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ पेट्रोल स्टेशंस के कुछ स्कैम्स रिलीज करे थे। और भी एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ दो बताए हैं आपको, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स व्हिच यू कैन डेफिनेटली कोट, राइट। ओके, नाउ एट द एंड यू कैन आल्सो टेल अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉजिटिव नोट पे एंड करना है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओगे आप। तो यहाँ पर आप सिंगापुर मॉडल का एग्जांपल दे सकते हो, सिंगापुर, वहां पर क्या करते हैं वो, कि वो जो स्पेशली जो लोअर उनके लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तो खासकर, ठीक है, उनको बस हाई रेम्यूनरेशन देते हैं, ये हाई रेम्यूनरेशन, ऑलरेडी पेमेंट अच्छी करते हैं अपने अथॉरिटीज को, ऑफिशियल्स को, सो दैट जब उनको पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं तो वो करप्शन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, पैसा मिल रहा तो इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि इंडिया में आप आओ, एग्जाम्पल इंडिया का, लाइक हमारे यहाँ पर अगर जो सबसे लोअर आपके जो पुलिस की अगर हम बात करें, जब हम पुलिस की अगर हम बात करें तो वहां पर लाइक कांस्टेबल
सबसे नीचे रहते हैं उनकी बहुत कम सैलरी होती है, तब भी सबसे ज्यादा करप्शन में आपको दिखेंगे वो इन्वॉल्व होते हुए, जबकि उनका काम बहुत टीडियस होता है, बहुत हेक्टिक काम होता है और सैलरी हिसाब से कुछ भी नहीं होती। दैट इज द रीजन कि वो करप्शन करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। यस, तो ये चीज यहाँ पर हम सिंगापुर मॉडल का एग्जांपल ले सकते हैं। यस और नो? ठीक है। सो और इन द एंड आपके लिए कुछ कोट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आप कौटिल्य के 2 कोट्स यूज कर सकते हो। यू कैन राइट दीज 2 कोट्स। फर्स्ट क्या है आपका? हनी ऑन द टंग, हनी ऑन द टंग, it's not possible to taste it, it's not possible not to taste it। ठीक है, जब मुंह पे शहद लग गया तो उसको चखना तो जरूर चखोगे, बिना उसके भी नहीं रहोगे। जब मुंह पे पैसे की आपको एक बार वो लग गई, ठीक है, तो फिर उसको तो आप हर टाइम ही रहेगा वो चीज। देन और राइट, और क्या है? ओके, सो कौटिल्य का एक और कोट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट, विच इज फिश स्विमिंग इन वाटर विल इटसेल्फ, fish swimming in water will itself does not realize, will itself does not realize, ठीक है, when it has, when it has drank it, when it has drank it। मतलब जब सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, सिस्टम पूरा ऐसा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कुछ गलत कर रहे हैं। यस, यहाँ पर आप राजीव गांधी जी का भी एक कोट यूज कर सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट है बेसिकली, लाइक उन्होंने कहा था कि अगर 1 रुपया रिलीज हो रहा है ऊपर से, तो नीचे तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, राइट, ओनली 15 पैसा रीच, ठीक है, ओनली 15 पैसा रीच द बेनिफिशियरी, ठीक है, ओनली 15 पैसा रीच द बेनिफिशियरी if rupees 1 is released by the government, if rupees 1 is released by the government, राइट। सो दीज इन दिस सेंस आप इसको एक इस नोट पे एंड कर सकते हैं, राइट। ऑल राइट, सो दिस वाज इट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। ऐसा सा ये कोई छोटा टॉपिक है, और उसके बाद वो भी आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पब्लिक फंड्स। तो उसके बाद ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक विच इज लास्ट टॉपिक रादर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, राइट। सो विद दिस आई विश यू हैप्पी होली एज वेल, ठीक है, होली मनाइए, खुश रहिए, राइट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अब एग्जाम को अच्छे से क्लियर करके फ्लाइंग कलर्स के साथ, राइट, अच्छे से होली आपकी रियलिटी में होली वही होगी, ठीक है, और उसके बाद अपना ऑफिसर बनिए, राइट। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।